جو میاں شہباز شریف صاحب ہیں، جن فرشتوں نے یا جن فرشتوں کو یہ اپنی چند بھینسوں کا دودھ اور قیمتی اور نایاب دودھ کروڑوں میں فروخت کرتے تھے، وہ فرشتے منظر عام پہ آ چکے ہیں۔ نیب کا ریفرنس تو فائل ہونے ہی والا ہے، وہاں یہ آپ کو جواب دینے پڑیں گے۔ لنڈن نہ جائیے گا، ادھر ہی رہیے گا۔ انشاءاللہ عید کے بعد ہم پورا یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، عوامی ڈیمانڈ ہے کہ آپ کا ڈے ٹو ڈے ٹرائل ہو۔ شہباز شریف کو ملنے والی کک بیکس کا ٹریل موجود، سوال وہیں کے وہیں، اپوزیشن لیڈر جواب دیں ورنہ ریفرنس دائر ہونے والا ہے۔ عید کے بعد وہاں جواب دینا پڑے گا۔ شہزاد اکبر کی ایک اور پریس کانفرنس، نون لیگی صدر بتائیں مسرور انور، شعیب قمر اور فضل داد عباسی کون ہیں؟ معاون خصوصی برائے احتساب کا نیب سے روزانہ سماعت کرنے، شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالنے کا مطالبہ۔ شہباز شریف کا اس اجلاس میں شرکت نہ کرنا اسی بات کی خمازی ہے کہ جو یہ ایلیٹ مائنڈ سیٹ ہے وہ برسر پیکار ہے، اور تقاریر وہی ہوئیں جو کہ پریس کانفرنسز کی جاتی ہیں، وہی ان کو دہرایا گیا پارلیمنٹ کی فلور پہ۔ شہباز شریف اجلاس بلا کر خود نہیں آئے، توقع تھی پارلیمنٹ میں تقاریر ہوں گی، رہنمائی ملے گی۔ اپوزیشن نے اسمبلی میں وہی کچھ کہا جو پریس کانفرنسز میں کہتے تھے۔ کیا احتساب کے عمل کو آگے بڑھانا نااہلی ہے؟ شبلی فراز کا سوال۔ شہباز شریف صاحب کے جو بھی اثاثے ہیں، جو بھی لائبلٹیز ہیں، جو بھی انکم ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ سب فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں پاکستانی قانون کے مطابق ڈکلیئرڈ ہے، اور جو ڈکلیئرڈ ہے اس میں ایک کیٹل فارم ہے۔ پاکستان کا کون سا قانون کہتا ہے کہ آپ کیٹل فارم نہیں رکھ سکتے؟ پلندے صرف میڈیا ٹرائل، کاغذ نہ لہرائیں، عدالت جائیں۔ نون لیگ کا چیلنج، شہباز شریف کے اثاثے الیکشن کمیشن میں ڈکلیئرڈ، شہزاد اکبر اپنی فکر کریں۔ ملک احمد خان، عطا طاہر، عثمان بخاری اور دیگر لیگی رہنماؤں کی پریس کانفرنس۔ شہزاد اکبر نے پھر الزامات کی سرکس لگائی لیکن ثبوت نہیں لائے۔ معاون خصوصی برائے احتساب 2 سال پہاڑ کھودتے رہے مگر چوہا ہی نکلا۔ مریم اورنگزیب کا رد عمل۔ کیوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کہہ رہی ہے کہ نیب ختم کر دو؟ ان کو پتہ ہے کہ عید کے بعد 31 جولائی تک نیب جھاڑو پھیر دے گی، ایسا جھاڑو پھیر دے گی کیونکہ وہ جو انہوں نے مزے لیے ہوئے ہیں ضمانتوں کے اور دوسری چیزوں کے، یہ سب فارغ ہو جائیں گے۔ شہباز شریف اپنا سافٹ ویئر ہی بدلے تو بچ سکتا ہے، ورنہ یہ لاک ڈاؤن جو ہے شہباز شریف کے لیے لاک اپ کا پروگرام ہے۔ عید کے بعد نیب کا جھاڑو پھرے گا۔ شیخ رشید کی اپوزیشن اور حکومت دونوں طرف سے گرفتاریوں کی پیش گوئی۔ شہباز شریف کو سافٹ ویئر بدلنے کا مشورہ، لاک ڈاؤن نون لیگی صدر کے لیے لاک اپ پروگرام قرار۔ نیب کسی دباؤ، دھمکی اور پروپیگنڈے کی پرواہ کیے بغیر کام کر رہا ہے۔ پاکستان کو کرپشن فری بنانا مقصد، کرپشن کے خاتمے کو قومی خدمت سمجھتے ہیں۔ منی لانڈرنگ کرنے والوں کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ چیئرمین جاوید اقبال پرعزم۔ نیب کو ختم نہیں کیا جا سکتا، بین الاقوامی معاہدے رکاوٹ۔ احتساب بیورو اقوام متحدہ کا پاکستان میں فوکل ادارہ۔ پاکستان کرپشن کے خلاف کنونشن کا دستخط کنندہ ہے۔ دیگر ممالک کو باہمی قانونی معاونت کے لیے خطوط صرف نیب لکھ سکتا ہے دستاویز۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں کرپشن ریفرنس، احتساب عدالت نے فرزانہ راجہ کو 1 جون کو طلب کر لیا۔ سابق چیئرپرسن پر غیر قانونی ٹھیکوں اور قومی خزانے کو 50 کروڑ روپے کا نقصان پہنچانے کا الزام۔ پنجاب میں انٹرسٹی بس سروس پیر سے چالو، پبلک ٹرانسپورٹ کے کرائے 20% کم کرنے کی منظوری۔ صوبے میں پاور لومز، شاپنگ مالز، آٹو اور موبائل فون انڈسٹری بھی پیر سے کھولنے کی اجازت۔ وزیر اعلیٰ عثمان بستار کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے، فیاض الحسن چوہان کی تصدیق۔
पंजाब में ट्रांसपोर्टर्स का एसी किराए 20%, नॉन एसी 15% कम करने का ऐलान। एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। हुकूमत ट्रांसपोर्ट को इंडस्ट्री का दर्जा दे। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लॉकडाउन में नरमी पर मार्केट्स में एसओपीज को फॉलो नहीं किया गया। पंजाब काबीना कमेटी के खुसूसी इजलास में रिपोर्ट पेश। कवायद पर अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म। हुकूमती हिदायत पर अमल शहरियों और ताजिरों की जिम्मेदारी है। उस्मान बुज़दार। ईद बुकिंग परदेसियों ने 24 करोड़ के टिकट खरीद लिए। ट्रेनें चलाने की इजाजत दी जाए। पीर तक ऑपरेशन शुरू ना हुआ तो नुकसान होगा। वजीर रेलवे ने खबरदार कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पीर से एसओपीज के तहत खोलने की इजाजत। सैलून्स और हजाम की दुकानें भी जुमा, हफ्ता और इतवार को काम कर सकेंगी। पंजाब हुकूमत का ईद के लिए 1 हफ्ते की तातीलात देने का फैसला। छुट्टियां 23 से 31 मई तक होंगी। तातीलात के दौरान ट्रांसपोर्ट और पार्क बंद रखने की तजवीज़। वज़ीर आला उस्मान बुज़दारी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। ईद उल फितर का चांद 22 मई को 10:40 पर पैदा होगा। 24 मई को नजर आने के कवी इम्कानात। महकमा मौसमियात की पेशगोई। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास 23 मई को कराची में होगा। कोरोना मजीद 31 जिंदगियां निकल गया। अब तक 834 अमवात। मुल्क भर में 38,799 शहरी मुतासिर। सिंध में 14,916, पंजाब में 14,201 मरीज। खैबर पख्तूनख्वा में 5,678 और बलूचिस्तान में 2,457 मरीज। कोरोना वायरस अज खुद नोटिस केस। वफाक और सूबों की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। ज़कात फंड ऑडिट में अरबों रुपए की खुर्द-बुर्द का इंकशाफ। 2015 से 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक 1 अरब रुपए खर्च ही नहीं किए गए। तहरीक इंसाफ वाले सिर्फ शोर करते हैं, काम नहीं। सिंध हुकूमत की तारीफ हुई तो वफाक को हजम नहीं हुई। बिलावल भुट्टो ने पहले दिन कहा था वजीर आजम के साथ हैं, पॉइंट स्कोरिंग को करंटीना में डाल दें। वजीर इत्तलात सिंध नासिर शाह का मशवरा। सिंध के ताजिरों का मुकदमा वजीर आजम के सामने रखने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में रेस्टोरेंट्स खोलने का मुतालबा। इमरान खान फौरी वक्त दें, ऐसा ना हो कि मजदूरों और ताजिरों का सब्र जवाब दे जाए। MQM रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जों की शरह में माहाना 20 अरब रुपए का रिकॉर्ड इजाफा। पेस्को की रिकवरी 1%, आइस्को की 2.7% कम। इंतजामिया के छापे। फ्लावर मिल्स बंद करने की धमकी। हमारे स्टॉक से जबरदस्ती गंदम उठाई जा रही है। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का इल्जाम, किसी को मनमानी नहीं करने देंगे। पहले भी ताउन किया, अब भी दरवाजे खुलेंगे। सीनियर सूबाई वजीर अलीम खान का रद्द अमल। दल पंजाब भी पहुंच गया। खानेवाल, मियां चन्नू, कबीरवाला, उच्च शरीफ, अहमदपुर सियाल में फसलों पर हमला। कई देहात लपेट में आ गए, किसान परेशान। हुकूमती इक़दामात का इंतजार। मैक्सिको में कोरोना से आज भी 290 हलाकतें। ब्राजील में 145 और रूस में 119 जान से चले गए। दुनिया भर में हलाकतों की मजमूई तादाद 3,09,000 से तजावुज कर गई। और पंजाब और सिंध में गर्मी बढ़ने लगी। कराची में कल से फिर हीट वेव का इम्कान। शहरियों को एहतियाती तदाबीर की हिदायत। अस्पतालों में भी हंगामी इंतजामात। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं जवेरिया जैद।
और मैं हूं आमना सज्जाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज होगा एक ब्रेक के बाद। हुकूमत और अपोजिशन में चोर सिपाही का खेल उरूज पर है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर ये कहते हैं कि ईद के बाद शहबाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस दायर होने वाला है। नैब और अदालत केस का रोजाना की बुनियाद पर ट्रायल करें। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ कहते हैं कि नैब को हिदायत देने और मीडिया पर कागज लहराने से कुछ नहीं मिलेगा, सबूत हैं तो अदालत जाएं। शहबाज शरीफ से हिसाब मांगने वाले आटा चीनी स्कैंडल, पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस, हेलीकॉप्टर और बीआरटी का भी जवाब दें। दोनों तरफ से जोर का जोड़ आपको दिखाते हैं। शहबाज शरीफ साहब हैं, जिन फरिश्तों ने या जिन फरिश्तों को ये अपनी चंद बहसों का दूध और कीमती और नायाब दूध करोड़ों में फरोख्त करते थे, वो फरिश्ते मंजर आम पर आ चुके। आपने पिछले 1.5 हफ्ते से भैंसों की रट लगाई हुई है। शहबाज शरीफ साहब के जो भी असासे हैं, जो भी लाइबिलिटीज़ हैं, जो भी इनकम है, जो कुछ भी है, वो सब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में पाकिस्तानी कानून के मुताबिक डिक्लेयर्ड है। और जो डिक्लेयर्ड है उसमें एक कैटल फार्म है। पाकिस्तान का कौन सा कानून कहता है कि आप कैटल फार्म नहीं रख सकते? नैब का रेफरेंस इस वक्त इख्तितामी मराहिल पे है। नैब का रेफरेंस तो फाइल होने ही वाला है, वहाँ ये आपको जवाब देने पड़ेंगे। हमारी ये ख्वाहिश है और ये हमारी डिमांड भी है, अदालत से भी है और नैब से भी है कि इसका डे टू डे ट्रायल करें। नैब से ये भी कहते हैं कि इनका नाम ECL पर डलवाएं। आप लंदन ना जाइएगा, इधर ही रहिएगा। इंशाअल्लाह ईद के बाद हम पूरा ये डिमांड करते हैं, अवामी डिमांड है कि आपका डे टू डे ट्रायल हो। रोज नैब को हिदायत जारी करते हैं। वो कहाँ गया 22 करोड़ का गंदा नाला? हाई कोर्ट में सुबकी हुई, सुप्रीम कोर्ट में सुबकी हुई। सुप्रीम कोर्ट में आपके प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जी हमारे पास एविडेंस नहीं है और पिछले दरवाजे से नईम बुखारी साहब रुखसत हुए। आशियाना का आपने स्कैम निकाला, उसका भी जो हशर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हुआ, पूरी कौम ने देखा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में लोगों की बेल्स हुई, साफ पानी में बेल्स हुई। साफ पानी में हाई कोर्ट ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने बचत की है। कैश डिपॉजिट्स की रसीदें हैं जो शहबाज शरीफ साहब के ज़ाती अकाउंट की हैं, जो मसरूर अनवर जमा करा रहा है। ये एक के बाद दूसरी है। ये 2015 की, वो 12 की थी, ये 2015 की कैश डिपॉजिट स्लिप है जो बैंक को अपने रिकॉर्ड में रखनी पड़ती है। ये तमाम शवाहिद मैं समझता हूँ इंशाल्लाह नैब के रेफरेंस का हिस्सा बनेंगे और इनका जवाब शहबाज शरीफ साहब को देना पड़ेगा। ये रोज़ कागज़ हिलाने से कुछ नहीं होगा। जो मामला है अदालत में पेश करें, अदालत में हम खड़े होंगे और हम आपको बताएंगे कि सबूत कहाँ हैं और शवाहिद कहाँ पे हैं। सारे सबूत आपके ऊपर है। आपको ये निसार ट्रेडिंग, GNC, निसार गिल, राशिद करामत, मसरूर अनवर, मलक मकसूद जो बेचारा चपड़ासी है शरीफ ग्रुप में, 1.5 अरब रुपया आपने उसके अकाउंट में से गुजार दिया। इन सब का आपको जवाब देना पड़ेगा। सरकारी पैसे से 56 करोड़ की सब्सिडी दे के जो इस कौम की चीनी चोरी की गई है, जो आटा चोरी किया गया है, उसका हिसाब कौन देगा? उसमें करप्शन भी है, उसमें किकबैक भी है, उसमें कमीशन भी है। मुखालिफ सम्त से भी तनकीदी नश्तर चले। नून लीग की तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को इल्जामात की सर्कस करार दे दिया। वही कहती हैं कि शहबाज शरीफ पर खरबों रुपए की करप्शन का सबूत पेश नहीं कर सके। आज सिर्फ 49 लाख रुपए करप्शन का नया इल्जाम लगा दिया गया। उन्होंने कहा कि अवाम चीनी कमीशन रिपोर्ट, BRT की करप्शन और फॉरेन फंडिंग के बारे में जानना चाहते हैं। वो दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी। आज एक नाकाम हारे हुए शख्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिनको कोई किसी किस्म की अरबों खरबों की जब करप्शन नहीं मिली, जो 17 साल से एक करप्शन के नैरेटिव को बेचा जा रहा था, आज वो सौदा बिकना बंद हो गया। आज तो आटा चीनी की कमीशन रिपोर्ट सुनने के लिए अवाम बैठी थी कि शहजाद अकबर साहब बताएंगे। आज तो मालम जब्बा की कहानी सुनने के लिए बैठी थी। आज तो हेलीकॉप्टर केस की सुनने के लिए 23 फॉरेन फंडिंग के स्टेट बैंक ने जो इनके दस्तावेज जो इमरान खान साहब सेक्रेटरी हैं वो सुनने के लिए बैठी हुई थी। तो 126 अरब के खड्डे जो BRT पेशावर के खुदे हैं, आज तो वो सुनना था। तो आज अवाम ने क्या सुना कि अरबों खरबों की करप्शन 49 लाख रुपए पे पहुंच गई है वो इल्जाम। तो जो इल्जाम का बदलती हुई हकीकत है, वही हकीकत है इन इल्जामात की भी। और मैं आपके तवज्जुह से बताना चाहती हूँ कि तमाम चीजों में बेल हुई भी है और वहाँ नैब के जो प्रोसिक्यूटर्स हैं जो आज ट्रेल दिखा रहे हैं, जो दस्तावेज और ट्रेल दिखा नहीं रहे, इल्जाम लगा रहे हैं। जो इल्जामात आज लगा रहे हैं उनको क्यों नहीं आर्ग्यू किया नैब की अदालतों में? उनको क्यों नहीं आर्ग्यू किया लाहौर हाई कोर्ट में?
सुप्रीम कोर्ट में नईम बुखारी साहब ने अपनी दरखास्त वापस क्यों ली? जो 507 अरब के चीनी बेची है आवाम की, ये उससे नजर हटाई जा रही है। 126 BRT पेशावर के सट्टे, उससे नजर हटाई जा रही है। जो Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.